ये बिम्स्टेक का महत्व एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बहुत अधिक है। जो BBIM वगैरह उनका केवल कनेक्टिविटी पर थोड़ा एम्फेसिस है, और सार्क तो जैसा कहा गया पाकिस्तान की वजह से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल अगर है किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में तो बिम्स्टेक में है। और ये एक बड़ा अच्छा पॉलिटिकल मैसेज भी there are no points of friction. There are no points of friction. All the countries are focused on development. Yes. And it's a very good signal to our BIMSTEC member nations that India looks after them. Yeah. India has invited them and given them an opportunity to present their own concept of development, their own priorities. What do they want for the region, and how can the other major economies of the world, of different continents, can come and contribute in that process. And do you think so that this is a forum will also put across the point that look, India and China need to work together even more than they are now? That is a given. Now India is ready, but China has some reservations or some agenda, but we have to keep working on it. And there will be more pressure now on China. There should be more pressure by all the countries that the whole region can progress much faster. It will be in the interest of every country if India and China can have more trust with each other. Definitely there is a trust deficit between India and China. There are very good objective reasons for it. They can be addressed very easily if China wants. Sriram, your take on that? Yeah, you know, today, this morning, I heard that the Prime Minister of Nepal and the President of China were having an informal powwow on the sidelines of the BRICS summit in Goa. Powwow? And Prime Minister Modi walked in unannounced and spent 20 minutes there. I think he surprised them, because what he was saying is, I am convening this and I am bringing you together, and there is a problem with Chinese expansion in Nepal, and we have always been wary of that. And similarly, Bangladesh President Xi was there recently and promised a massive financial aid package for infrastructure $20 billion. construction. And Bangladesh is willing to even join the One Belt One Road. So on one hand, so what we are trying to say is, ideally there is room good enough in the whole of the Indo-Pacific for both of us to coexist and to prosper. But if they are trying this containment game for us, then we are not going to be behind, So we need to, in a way, this competition come cooperation. That's the complex China-India equation. But we would want to emphasize more of the cooperative aspect in these forums. If it is a bilateral summit between President Xi and Prime Minister Modi, it's different. In these forums, we should sometimes show sagacity and bigger spirit and try to take along the smaller countries. Myanmar, even security-wise, just last week they have announced that Pakistan-trained jihadist groups have started, causing terror attacks in the Rakhine state, where the Rohingya problem is. So Pakistan is a common threat that is somehow featuring both for Bangladesh, Myanmar, and possibly even Thailand, where many of these arms smuggling networks and jihadist groups have been making hay. So for all these countries, the human trafficking angle as well. Exactly, the migration problem, the boat people. For all these countries to our east, to come on board, and I'm sure BIMSTEC will also take a strong position against terror, because they are also going to be impacted. चलिए जी कि दृश्य सारे कि गोवा से सीधा प्रसारण भी आ रहा है कि ब्रिक्स बिम्स्टेक विस्तारित सम्मेलन भी शुरू हो रहा है। यहाँ पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष भी यहाँ पहुँच गए हैं और पहुँच चुके हैं, और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात कि जब ये सारे देश इकट्ठा होते हैं तो कोई नई सोच और नए योजनाओं के बारे में और नए पहलुओं पर भी विचार विमर्श होता है और रिश्ते बेहतर होते हैं। हालांकि ये एक सिर्फ विस्तारित बैठक है, लेकिन फिर भी इस बैठक के मायने बहुत ज़्यादा हैं। देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं और शेख हसीना के साथ हैंडशेक। ये हैंडशेक बहुत ज़्यादा कहानी बयां करता है। हमने ये भी देखा चलिए जी किस तरीके से इस हैंडशेक को भी डिस्कस किया जाता है कि भाई कौन कितनी गर्मजोशी से मिला है। लेकिन जब हम बात करते हैं इस मंच की, अगर हम गंभीरता से बात करना चाहें तो हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो छोटे अन्य गुट भी हैं बिम्स्टेक के अलावा, उनमें भी संपर्क बढ़ाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पास हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, संपर्क बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। भारत के लिए भी वो अच्छा है जी, लेकिन इसमें हमें चीन से सीख लेनी पड़ेगी। अच्छा, वो बहुत हमसे आगे बढ़ चुके हैं इसमें, और जिस लेवल की जो इन्होंने कनेक्टिविटीज बनाई है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज बना दिए हैं, यूरोप तक उनके अब ये ट्रेन जाती है चीन से, इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें हम पीछे थे। लेकिन अब देखिए भारत के अंदर भी डोमेस्टिकली हाईवेज की भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं हम, गडकरी साहब कर रहे हैं। और दूसरा, अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑल्सो हमें
पैनापन दिखाना पड़ेगा, बिकॉज होता ये है कि भारत की छवि थोड़ी सी खराब हुई है पिछले कुछ सालों में कि हम ढीले होते हैं, हम बस कह देते हैं कि हो जाएगा लेकिन फिर पोस्टपोन होता जाएगा, कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन। लेकिन आई थिंक अभी जो अब बहुत माहौल बदल चुका है, माहौल बदल चुका है, टाइम के साथ टारगेटेड योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता है। आप कैसे देखते हैं इसको, इन तमाम देशों में जो संपर्क बढ़ाने की कवायद और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कवायद आगे बढ़ रही है? देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में तो हमने इन देशों में बहुत काम किया है, हर जगह जितने भी देश हैं, और ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप्स और कई तरह से। पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम नहीं कर पाए। ट्राइलेटरल हाईवे की बात हो रही है, देखिए उसका ईयर बढ़ता चला जा रहा है, अब 2018 की बात हो रही है, जो 2012 में बनना था, तब भी बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उस पर बहुत ही शार्प फोकस हमको देना है कि ये सड़क बने और जल्दी से जल्दी बने। और इन सब मीटिंग्स से देखिए ये भी फ़ायदा होता है कि एक पूरी गवर्नमेंट का फोकस उस डायरेक्शन में चला जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारी भी जितनी एजेंसीज हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, to something to monitor it as well. If there are some bottlenecks, if there are some fund requirement, technical requirement, then the whole government's might will be there to resolve those issues. So that way it will be very important and useful. But we have to do more and very fast in developing this trilateral highway to through Myanmar to Thailand. लेकिन खास तौर पर इन बिम्स्टेक देशों में आप ऐसे कौन से देश देखते हैं जिन पर भारत को खास तवज्जो देनी चाहिए, चाहे हम वो राजनीति की बात करें या चीन के प्रभाव की बात करें? भारत का ध्यान इन बिम्स्टेक देशों में कुछ खास देश ऐसे आप समझते हैं जिन पर ज़्यादा देना चाहिए ताकि जो बातें हो रही हैं उनको ज़्यादा गति मिल सके? देखिए, भारत के लिए तो ये सब देश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, उसके बाद आप नेपाल भी अब मेंबर है, सार्क का ओवरलैप है। थाईलैंड इस समय अपनी परेशानियों से गुजर रहा है, पर उनके किंग की भी देहांत हो गया, तो उसको थोड़ा वहाँ मेरे ख्याल से थोड़ा कम हमारा सक्सेशन प्लान इज नाउ इन प्लेस। हाँ, सक्सेशन प्लान इज इन प्लेस। पर हमारे लिए सभी देश बहुत इम्पोर्टेंट है, और जितना हमारे फिजिकली क्लोजर है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और नेपाल तो है ही अब सब इम्पोर्टेंट, और हमें सबको ध्यान देना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ लोगों का देश है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, अपना 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी। हमारा बहुत पोटेंशियल है, हमारी जितनी कंपनीज हैं वो सब बाहर जाके इन्वेस्ट कर रही हैं, तो हमारा पास कैपेसिटी बहुत है, हम सब देशों के साथ बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हैं। और थोड़ा सा पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, और अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उनको आयरन आउट करने में आसानी होती है इस तरह के कॉन्टेक्स्ट से, इस तरह के समिट लेवल बातों से, क्योंकि हर लेवल पे संबंध बढ़ते हैं और वो गहरे होते हैं। जी, चौले जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे उन्होंने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, क्षमता है लेकिन आगे क्रियान्वयन, और अब जो हम देख रहे हैं एनडीए सरकार केंद्र में है, वो तो हर मुद्दे पर, खासतौर पर ऐसे मुद्दों पर बहुत सोच के साथ और ठोस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरीके के जो समिट अब हो रहे हैं और आगे भी होंगे, उनमें भारत बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करेगा। जी हाँ, देखिए, मोदी जी की जो कूटनीति है उसमें विकास बिल्कुल केंद्र बिंदु बना हुआ है, और भारत के नागरिकों के लिए कुछ समझ सकते हैं कि ये बिम्स्टेक क्या है, ब्रिक्स क्या है, कोई आम इंसान पूछ सकता है, लेकिन जो एग्रीमेंट साइन होती है आप उनके तह तक जाके देखें तो इनसे आम लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको मदद मिलती है, चाहे G20 पे हो, चाहे ईस्ट एशिया फोरम हो, चाहे ये हो। पिछले कुछ महीनों में इतने भी समिट। टॉक अबाउट द पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल हियर इन टर्म्स ऑफ how the BIMSTEC countries can be of help to India and how can we be of help to them? Well, it's, you know, if you look at Southeast Asia, the ASEAN group, they are a far more interlinked in terms of trade and in terms of you know, even cross-border investment. Vietnam has become very central for us, a little further afield, strategically, and also economically it's booming. So in fact there are new terms, BRICS के बाद लोगों ने कुछ नए अल्फाज भी निकाले, जैसे कि एक है नेक्स्ट 11 कहते हैं, उसमें वियतनाम भी शामिल है, कैम्बोडिया भी हैं, सिवेट्स CIVETS ये इस्तेमाल किया गया है। तो इन सब से आप देख सकते हैं कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा हैं टुवर्ड्स आवर ईस्ट, बल्कि हमारे smaller but they're growing even faster. They're growing fast, and so to our west, unfortunately, there is conflict and you know, turmoil,
and terrorism, but to our east there's a lot of opportunity. ये जो Indo-Pacific जो हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे And there's सबसे Buddhism and peace as well. absolutely. There are cultural differences So that cannot be ignored. so Buddhism, Hinduism, you know, it's a confluence, what we Yeah. call Indo-China or Right. Southeast Asia. So we have a lot of potential there, and you know, the Buddhist circuit, the Prime Minister has promoted it in a big way बिल्कुल for East Asian nationals. So towards our east lies a lot of opportunity. And what we are trying to emphasize through this is, you know, when the business forums of both these groupings come together, this is a very ambitious thing, but it is doable. This is what we call inter-regionalism. एक तो इंटरनेशनल होता है दो मुल्कों के दरमियान, ये है कि एक रीजन दूसरे रीजन के साथ मिल रही है, तो इस लेवल पे इतने सारे मुल्क एक साथ आ रहे हैं, और भारत एक मोटर है, ड्राइवर है ऑफ दिस इकोनॉमिक शेयर्ड इकोनॉमिक एजेंडा. तो सबका साथ सबका विकास ही हो रहा है बिल्कुल. अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे. हम ये भी देखते हैं कि जब भी शिखर सम्मेलन होते हैं तो ऐसे कुछ ना कुछ ग्रुपिंग्स को इनवाइट किया जाता है. उफा में भी किया गया था, उससे पहले फोर्टालिज़ा में भी किया गया था. ये आउटरीच समिट जिसको हम बात करते हैं, इनका मकसद क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखाना होता है कि जो होस्ट कंट्री है उसकी अपनी इंटरेस्ट हैं आसपास इर्द गिर्द, और उन सब इंटरेस्ट को भी वो शामिल करना चाहता है. जो ब्रिक्स में जो सफलता है उसमें इन सब लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए. अब ब्रिक्स की अगर इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड अगर 300 बिलियन तक पहुंच गया है, तो नेपाल क्यों बाहर रहे उससे, और श्रीलंका क्यों उससे, व्हाई शुड इट बी डिप्राइव्ड? तो इसलिए ये होता है, एक तरीका होता है लीडरशिप दिखाने का, रीजनल लीडरशिप, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है प्राइम मिनिस्टर का, वो